Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter number 3, Indian Constitution. So open your textbook on page number 30. Haley, Priyansi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. Everyone was rejoicing in victory. तो हेली, प्रियांशी और सचिन ये तीनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसको देख रहे थे। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था। वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, इंडिया या श्रीलंका? श्रीलंका जो है उसने एक बड़ा स्कोर इंडिया के सामने रखा था उसको अचीव करने के लिए, लेकिन जिस तरह इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग की उससे इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था उस जीत से। हेली सेड टू हर मदर वाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. What does that mean? Neeta Ben said, Haley, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. A tie in a match means that both the teams have an equal score. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation will surely require well framed rules. तो हेली ने अपनी मदर से पूछा टीवी देखते हुए कि मम्मी, जो पहला मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच हुआ था वो टाई था, उसका क्या मतलब होता है? नीता बेन ने बताया कि एक फेमस गेम्स है जैसे कि क्रिकेट, जो आईसीसी ने अपने रूल्स बनाए रखे हैं। टाई यानी कि मैच ख़त्म होने पर दोनों टीम को बराबर के पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह से और भी जो गेम्स हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा, इन सब में उनके अपने रूल्स होते हैं। अगर किसी गेम में बहुत सारे रूल्स हैं तो एक नेशन को सही तरीके से चलाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर भी रूल्स की ज़रूरत होती है। और अभी नीचे जो दिया गया है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So now we'll study regarding it. A systematic completion of set of rules to run the government of a country is known as the Constitution of the country. Constitution can be in written or unwritten form. Our Constitution starts with the preamble. तो एक सही तरीके से अगर सेट्स को कंपल किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है ताकि देश की गवर्नमेंट चल सके, तो उसे हम कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन यानी देश का संविधान कहते हैं। देश का जो बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ भी है
हो सकता है या नहीं लिखा हुआ भी होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत प्रियम्बल से होती है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 14। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड? The Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. The Constituent Assembly was established. It started working from 9th December 1946. The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. Their political vision and foresight was incorporated in the Constitution. तो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें हमारे नेशनल गोल्स और एम्स, हमारे ध्येय जो है वो गोल है वो सेट किए हैं, जिसमें डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है और उसमें काम करना शुरू किया 9 दिसंबर 1946 से। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था बड़े बड़े और जाने माने स्कॉलर्स और लीडर्सों के द्वारा, जो एक राजनीतिक विश्लेषण होता है, पॉलिटिकल विज़न और फोरसाइट, और उनका जो तजुर्बा और उन्होंने सोचा उस वक्त सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। तो ये सब जो लीडर्स थे, तो ये सब लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बन से ही सभी ने उनका योगदान दिया। वहाँ पर और कौन था? फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड HP मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी। जो एंथोनी थे फ्रैंक, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, और HP मोदी थे वो पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। ये कमेटी के पास बहुत सारे स्कॉलर्स थे और उनके नाम थे अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी एक्सेट्रा। There were female members like सरोजिनी नायडू एंड विजयालक्ष्मी पंडित। तो सिर्फ मेल मेंबर्स ही नहीं थे, फीमेल मेंबर्स भी थे, और वो कौन थे? उसके नाम क्या थे? सरोजिनी नायडू और विजयालक्ष्मी पंडित। Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly. There were a number of subcommittees to take care of various aspects of the Constitution. The drafting committee, which was headed by Dr. BR Ambedkar, gave to the Constitution its final shape. तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट चुने गए। उसके बाद कुछ सब कमेटी बनाई गई ताकि अलग अलग पहलू कॉन्स्टिट्यूशन के वो सही तरह से देखभाल कर सके। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल दी। टोटल 166 meetings were held by the Constitution Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. On 26 November 1949, the committee passed the Constitution, which was enforced on 26 January 1950. तो 166 मीटिंग्स होती कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय में इतनी मीटिंग्स हुई, 166 मीटिंग्स। और 26 नवंबर 1949 को कमेटी ने
कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल अपना रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। अभी बिलो द पिक्चर्स आर गिवन ऑफ द person who had created the constitution and the names we read: Maulana Azad, Dr. Bhimarao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu, Kanhaiya Munshi. Now page number 15. Why do we need a constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. A constitution serves many objectives. It is a document which finally weaves the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. However, there are provisions in the Constitution to check the misuse of power by the leaders. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई भी कंट्री नहीं चल सकती अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही होते हैं। ये एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें जितने भी कंट्री रिलेटेड आइडियल्स है वो लिखा गया है। हमारी गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए वो लिखा हुआ है। हमारे कंट्री का कामकाज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा वो दिया हुआ है। तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें लीडर्स चुने जाते हैं ताकि वो जो है वो पब्लिक के बिहाफ पे काम कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ तक का प्रोविज़न किया गया है कि कोई लीडर जो है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको सज़ा की जाती है। देन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट सेलिएंट फीचर्स है डेमोक्रेटिक रूल। India has adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. We cannot imagine democracy without election. People all over the country play their role in electing their representative. तो हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होते हैं। 18 साल की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोग वोट डाल सकते हैं। ये हम सोच नहीं सकते कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन ना हो। पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो अपना रोल अदा करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में। Any voter of the country can contest an election, irrespective of his or her religion, caste, class or gender. The elected representatives rule for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow religion of his or her choice, as well as freedom of speech, expression and thought. कोई भी वोटर हो कंट्री का वो इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, क्लास या जेंडर का हो। ये 5 साल तक काम करते हैं। हर सिटीज़न जो है वो फ्रीडम एंजॉय करता है, जैसे कि अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो कर सकता है, साथ उसको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति और विचारों की भी आज़ादी है। दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट।
दूसरा फीचर है सेक्युलरिज्म। A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governance. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect, or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his or her choice. तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दे रही है कि कोई किसी पर्टिकुलर धर्म को है उसे सपोर्ट करे। जो भी रिलीजन को मानते हैं, जिसमें उनकी आस्था है, विश्वास है, उनके बीच में उसको लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक नागरिक सिटीज़न को ये अधिकार है कि वो जिस भी विधान को मानता है, उसको पसंद है, वो फॉलो कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।